Navigating the dangerous depths of the oceans are powerful submarines that are readily armed for action. These vessels have, time after time, proven their irreplaceable importance as part of a nation's military arsenal, and it only gets better. They are one of the most dangerous vessels in the world, and with the perfect combination of power and stealth, they are almost unstoppable. Recognizing their strategic importance, the United States has unveiled an extremely dangerous $300 million submarine that has shocked not only Israel but the world. What are the capabilities of this deadly submarine? What are the features of the most dangerous vessels in the world? Join us as we unveil the capabilities of some of the most dangerous submarines in the world. Since the 19th century, submarines have quickly become adopted by many navies. A must-have, they became widely used during the First World War and are now important vessels to both large and small navies around the world. Militarily, submarines are more than just a means of transportation. They are also used for various purposes, such as attacking enemy ships, protecting aircraft carriers, and carrying out reconnaissance and covert operations. Submarines come in various types, from small autonomous vessels to massive ones like the Russian Typhoon class, which can remain submerged for extended periods, up to 6 months. They operate at depths far deeper than humans can dive safely, making them invaluable for underwater exploration and defense operations. We would be exploring some of the biggest and most dangerous submarines in the history of submarines. Beginning with the 6th largest and the deadliest submarines in the world, the Typhoon class, known as Project 941 Akula in Russia, was a series of huge nuclear-powered submarines built by the Soviet Union. These submarines were the biggest ever made, with a submerged weight of 48,000 tons. They were designed to carry ballistic missiles and even had enough space to provide a comfortable living environment for a crew of 160 people for several months underwater. These giant submarines were not only designed to carry missiles, they also had 6 torpedo tubes for RPK-2 missiles or Type 53 torpedoes. A Typhoon-class submarine could stay underwater for 120 days under normal conditions, and possibly longer if necessary, such as during a nuclear war. Their main weapons system consisted of 20 R-39 ballistic missiles, each capable of carrying up to 10 nuclear warheads. Impressively, they could launch these missiles while still docked. These submarines had multiple pressure hulls, making the interior layout simpler and the vessel much wider than typical submarines. Inside, there were 2 long pressure hulls side by side, with a third smaller one above them, and 2 more for torpedoes and steering gear. This design increased their survivability. अगर एक पतवार टूट भी जाती, तो चालक दल और बाकी लोग सुरक्षित रहते, जिससे पानी में डूबने का खतरा कम हो जाता। बैलिस्टिक मिसाइलों को 2 मुख्य दबाव पतवारों के बीच रखा गया था, और उनकी प्रक्षेपण नलिकाएं बाहरी, हल्के पतवार से ढकी हुई थीं। दिलचस्प बात यह है कि यह जहाज पानी में डूबे रहने के दौरान 28 समुद्री मील की गति से यात्रा कर सकता था। ये पनडुब्बियां 1980 से और 1989 के बीच बनाई गईं, लेकिन केवल एक ही सेवा में रही। 9 मंजिला यह पनडुब्बी बहुत महंगी थी। 567 फीट लंबी और 24 फीट ऊंची होने के बावजूद इसे सबसे ज्यादा हथियारों से लैस और साथ ही सबसे शांत पनडुब्बी माना जाता था। टाइफून एक एकल जहाज है, लेकिन इसके अंदर एक कटमरैन है। इसके अंदर लगे 2 मजबूत टाइटेनियम पतवार 20 साल्वो लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों, जिनमें 200 परमाणु हथियार थे, की संरचना और स्थान की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं। रिएक्टर और टॉर्पीडो ट्यूब भी अपने अलग अलग डिब्बों में स्थित हैं। अपने आकार के बावजूद टाइफून की उछाल क्षमता रिकॉर्ड 40% है, इसलिए यह आर्कटिक की बर्फ को 8 फीट तक आसानी से तोड़ देती है। इस परमाणु पनडुब्बी की खासियत इसकी आरामदायक आवास व्यवस्था भी है। नाविक आखिरी बची हुई 8वीं फ्लोट टिके डिमित्री डोंस्कॉय में 6 महीने तक बिना रुके यात्रा करते हैं और इसे फ्लोटिंग हिल्टन कहते हैं। रूस ने इस बेहद खतरनाक और शक्तिशाली पनडुब्बी के साथ अपनी छाप छोड़ी, लेकिन अमेरिका ने इससे भी ज्यादा शानदार पनडुब्बी विकसित की है। शक्तिशाली और खतरनाक ओहियो क्लास पनडुब्बी जो पूरी तरह से हथियारों से लैस है। ओहियो क्लास अमेरिकी नौसेना की शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का एक समूह है, जिसमें 14 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां और 4 क्रूज मिसाइल पनडुब्बियां शामिल हैं। ये पनडुब्बियां विशाल हैं। प्रत्येक का जलमग्न होने पर वजन 1850 टन होता है, जो इन्हें अमेरिकी नौसेना द्वारा निर्मित अब तक की सबसे बड़ी और सेवानिवृत्त रूसी टाइफून श्रेणी और बोरई श्रेणी के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पनडुब्बी बनाता है। इनमें से प्रत्येक पनडुब्बी 24 ट्राइडेंट आइरी मिसाइलें ले जा सकती है, जो बोरई श्रेणी की केवल 16 मिसाइलों और अब सेवानिवृत्त हो चुकी टाइफून श्रेणी की 20 मिसाइलों से कहीं अधिक है। ये पनडुब्बियां सामरिक बमवर्षकों और अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ अमेरिका के परमाणु निवारक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये 14 SSBN कुल मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आधे सक्रिय सामरिक परमाणु हथियार रखते हैं। गश्त के दौरान
इन ट्राइडेंट मिसाइलों के कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं होते, लेकिन नेब्रास्का स्थित संयुक्त राज्य सामरिक कमान द्वारा सुरक्षित निरंतर संचार संपर्कों के माध्यम से इन्हें तुरंत लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। अधिकांश ओहायो श्रेणी की पनडुब्बियों के नाम अमेरिकी राज्यों के नाम पर रखे गए हैं। यह परंपरा पहले केवल युद्धपोतों और क्रूजर के लिए ही मान्य थी, सिवाय यूएसएस हेनरी एम जैक्सन के। 2013 से ओहियो क्लास की पनडुब्बियों की जगह नई कोलंबिया क्लास पनडुब्बियां ले लेंगी। ओहियो क्लास पनडुब्बियों को लंबी रणनीतिक निवारक गश्तों के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर वे हमेशा जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। प्रत्येक पनडुब्बी में 2 पूर्ण चालक दल होते हैं, जिन्हें ब्लू क्रू और गोल्ड क्रू कहा जाता है, जो बारी बारी से 70 से 90 दिनों की गश्त पर जाते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे बंदरगाह में कम और समुद्र में ज्यादा समय बिताएं। इन पनडुब्बियों में 3 बड़े रसद हैच हैं। ये हैच तेजी से पुनः आपूर्ति और मरम्मत की सुविधा देते हैं, जिससे बड़ी वस्तुओं और उपकरणों को तेजी से स्थानांतरित किया जा सकता है। ओहियो श्रेणी की पनडुब्बियों की सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में से एक उनकी गुप्त क्षमता है। 1951 में समुद्री परीक्षणों के दौरान यूएसएस ओहियो लगभग अदृश्य था, जिससे अमेरिकी नौसेना को पानी के भीतर संचालन में भारी बढ़त मिली। ये पनडुब्बियां इतनी अच्छी तरह से डिजाइन की गई हैं कि इनमें बड़े बदलाव लगभग 15 साल तक चल सकते हैं। 20 समुद्री मील की गति से चलने पर ये अपने पूर्ववर्तियों की तरह ही शांत हैं। लाफायट श्रेणी की पनडुब्बियां केवल 6 समुद्री मील की गति से चलती थीं। हालांकि सटीक विवरण गोपनीय है। 42 फीट व्यास वाले बड़े खंडों से निर्मित इन खंडों का निर्माण रोड आइलैंड स्थित जनरल डायनेमिक्स इलेक्ट्रिक बोट फैसिलिटी में किया गया था और फिर कनेक्टिकट में संयोजन किया गया था। ओहायो श्रेणी के बेड़े में 18 पनडुब्बियां, 14 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां और 4 क्रूज मिसाइल पनडुब्बियां शामिल हैं। SSBN संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनमें से प्रत्येक में 20 ट्राइडेंट आईडी बैलिस्टिक मिसाइलें लगी होती हैं। दूसरी ओर SSGN 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों के साथ साथ हार्पून मिसाइलें भी ले जा सकते हैं, जिन्हें उनकी टारपीडो ट्यूबों से दागा जा सकता है। उन्नत तकनीक और अविश्वसनीय गुप्त क्षमता के साथ ओहियो श्रेणी की पनडुब्बियां दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सक्षम पानी के नीचे चलने वाली पनडुब्बियों में से एक हैं। हैरानी की बात यह है कि इस शानदार जहाज की आवाज केवल 102 डेसिबल है। यह गड़गड़ाहट से भी थोड़ी तेज है। पनडुब्बियों के लिए ये बस छोटी मोटी चीजें हैं, जिन्हें ओहायो के 804 फीट की अधिकतम गहराई पर पहचानना मुश्किल है। टाइफून के साथ ही निर्मित ओहायो कहीं ज्यादा आशाजनक, सस्ता और बहुमुखी निकला। जाहिर है, यह एकमात्र पनडुब्बी मिसाइल वाहक है जिसमें मिसाइलें, टॉर्पीडो, लड़ाकू तैराक और गहरे समुद्र में लॉन्चर हैं। वैसे ऐसी अफवाहें हैं कि इस प्रकार की 1 या 2 नावों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माल के परिवहन के लिए पनडुब्बी परिवहन में परिवर्तित किया गया है। रूस की एक और दुर्जेय पनडुब्बी प्रोजेक्ट 955 बोरेई की मूक विशालकाय पनडुब्बी की बात करें तो बोरेई रूसी नौसेना के लिए सेवमोश द्वारा निर्मित उन्नत परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की एक श्रृंखला है। ये पनडुब्बियां धीरे धीरे पुराने सोवियत काल की डेल्टा ट्राई, डेल्टा आईवी और फरवरी 2023 तक पूरी तरह से सेवानिवृत्त हो चुकी टाइफून श्रेणी की पनडुब्बियों की जगह ले रही हैं। हालांकि ये कई प्रकार की पुरानी पनडुब्बियों की जगह ले रही हैं, लेकिन बोरेई श्रेणी की पनडुब्बियां विशाल टाइफून श्रेणी की पनडुब्बियों से काफी छोटी हैं। इनका जलमग्न विस्थापन 24,000 टन है, जबकि टाइफून का 48,000 टन है और इनके चालक दल के सदस्य 160 के बजाय 107 हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बोरेई क्लास विशाल टाइफून की सीधी जगह लेने के बजाय डेल्टा आईवी क्लास पनडुब्बियों का आधुनिक उत्तराधिकारी ज्यादा है। बोरेई क्लास पनडुब्बियां आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जिनमें शोर कम करने के लिए डिजाइन किया गया एक चिकना, हाइड्रोडायनामिक रूप से कुशल पतवार है। ये पंप जेट प्रणोदन का उपयोग करने वाली पहली रूसी परमाणु पनडुब्बियां हैं, जो इन्हें अविश्वसनीय रूप से शांत बनाती हैं। दरअसल रूसी समाचार सेवा TSS का दावा है कि ये पनडुब्बियां पुरानी अकुला क्लास की पनडुब्बियों से 5 गुना और अमेरिकी वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बियों से 2 गुनी शांत है। हालांकि समय के साथ इनके हाइड्रोलिक पंप ज्यादा शोर करने लगते हैं, जिससे इनकी चुपके से उड़ान भरने की क्षमता कम हो सकती है। लगभग 170 मीटर लंबी और 13 मीटर व्यास वाली बोरेई क्लास की पनडुब्बियां पानी के नीचे 46 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति प्राप्त कर सकती हैं। इनमें एक तैरता हुआ बचाव कक्ष है, जिसमें पूरा चालक दल रह सकता है, जिससे आपात स्थिति में उनकी सुरक्षा बढ़ जाती है। हालांकि यह विशाल टाइफून क्लास से छोटा है, लेकिन बोरी 26 टन के हल्के बुलावा SLBM और टोपोलेम ICBM के उन्नत संस्करण की बदौलत कुल 16 मिसाइलें ले जा सकता है। एक बोरी पनडुब्बी की अनुमानित कीमत लगभग 23 अरब फिलीपीन पेसो है, जो 2010 में लगभग $7 मिलियन थी और 2020 में लगभग $803 मिलियन के बराबर है।
यह ओहायो श्रेणी की SSBN की तुलना में अपेक्षाकृत किफायती है, जिनकी लागत 2020 के संदर्भ में $3 अरब प्रति 100 टन से अधिक है। बोरेई का निर्माण एक विशाल कार्य है, जिसके लिए 13 लाख पुर्जों और तंत्रों की आवश्यकता होती है और 17,000 टन धातु का उपयोग होता है, जो एफिल टावर के लिए आवश्यक धातु से 50% अधिक है। इन पनडुब्बियों में 109 किलोमीटर लंबी पाइपिंग और 600 किलोमीटर लंबी वायरिंग है और इनके पतवारों को 10,000 रबर प्लेटों से ढका गया है ताकि इनकी चुपके क्षमता को बढ़ाया जा सके। ये उन्नत विशेषताएं बोरेई क्लास को पनडुब्बी प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण छलांग बनाती हैं। 16 सनसनीखेज बुलावा मिसाइलों से लैस यह सबसे आधुनिक रूसी पनडुब्बी पहली नजर में शायद ही बहुत दिलचस्प लगे, लेकिन ये पनडुब्बियां प्रोजेक्ट 941 की नावों की जगह लेती हैं, जिन्हें सस्ते में बेहतरीन सुविधाएं मिली हैं। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जहाजों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले मल्टीब्लेड प्रोपेलर की जगह बोरी में वाटरजेट प्रोपेलर लगे हैं, जिससे उनका शोर बेहद कम हो गया है। अनुमान के मुताबिक यह सबसे शांत नावों अकुला से 5 गुना कम है। वाटर कैनन को एक पतवार से सहायता मिलती है जो अलग अलग डिब्बों में बंटी होती है और जो आपस में शॉक एब्जॉर्बिंग पैड से जुड़ी होती है। पनडुब्बी की सतह पर भी रबर कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है। विशेष कम चुंबकीय सामग्रियों के संयोजन से इस तकनीक ने बोरेई श्रेणी की पनडुब्बी को पानी के भीतर चुपके से ज्यादातर पर्यवेक्षकों के लिए अदृश्य बना दिया। आइए K278 कॉम्सोमोलेट्स की अद्भुत विशेषताओं पर चलते हैं। यह पनडुब्बी, जिसे नाटो द्वारा माइक क्लास पनडुब्बी के नाम से भी जाना जाता है, सोवियत नौसेना की एक अनोखी और उन्नत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी थी। यह अपनी तरह की इकलौती पनडुब्बी थी। इसकी खासियत इसकी अविश्वसनीय गहराई तक पहुंचने की क्षमता थी। 4 अगस्त 1954 को यह नॉर्वेजियन सागर में 1020 मीटर की रिकॉर्ड गहराई तक पहुंच गया। इतनी गहराई पर आज तक पनडुब्बियां अन्य जहाजों का पता लगाने और उन्हें हथियारबंद करने में असमर्थ हैं। हालांकि इसे शुरू में भविष्य की रूसी पनडुब्बियों के लिए नई तकनीक का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन कॉम्सोमोलेट्स युद्ध के लिए पूरी तरह से सुसज्जित था। इसे दुश्मन की परमाणु पनडुब्बियों के लिए पानी के भीतर शिकार करने वाले के रूप में बनाया गया था। इसलिए इसने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों में मौजूद सभी समकक्षों को पीछे छोड़ दिया। दुर्भाग्य से 1989 में आर्कटिक महासागर में अपनी तीसरी गश्त के दौरान इसके पिछले डिब्बों में भीषण आग लग गई। आग लगने के बावजूद कॉम्सोमोलेट्स पानी की सतह पर आने में कामयाब रहा और लगभग 5 घंटे तक तैरता रहा। हालांकि बचाव कार्य असफल रहे और 42 चालक दल के सदस्यों की जान चली गई। आज K278 का मलबा बैरेंट्स सागर की तलहटी में लगभग 1.7 किलोमीटर गहराई में पड़ा है। इसमें अभी भी परमाणु रिएक्टर और परमाणु हथियारों से लैस 2 टॉर्पीडो मौजूद हैं, जो पनडुब्बी चालकों के सामने आने वाले खतरों की एक गंभीर याद दिलाते हैं। सूची में अगला नाम लॉस एंजल्स पनडुब्बी का है, जो उतनी लोकप्रिय नहीं है। लॉस एंजल्स श्रेणी की बहुउद्देशीय परमाणु पनडुब्बियां उन सभी के लिए अच्छी तरह से जानी जाती हैं जो समाचारों या वैश्विक घटनाओं पर नजर रखते हैं। अमेरिकी नौसेना ने कुल 22 ऐसी पनडुब्बियां हासिल की जो किसी भी अन्य परियोजना से बेजोड़ है। लॉस एंजल्स श्रेणी ने आधुनिक बहुउद्देशीय परमाणु पनडुब्बियों के लिए मानक स्थापित किए, जो कई तरह के अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। इनमें दुश्मन की पनडुब्बियों और सतह पर तैनात जहाजों से लड़ना, टोही, विशेष अभियान, विशेष बलों की तैनाती, जमीनी ठिकानों पर सटीक हमले, खनन और खोज बचाव अभियान शामिल हैं। ये 40 मील प्रति घंटे की रिकॉर्ड गति से पानी के भीतर यात्रा कर सकती हैं। इसके अलावा इनके रिएक्टरों को हर 42 साल में केवल रिचार्ज करने की जरूरत होती है, जिससे लॉस एंजल्स श्रेणी की ये पनडुब्बियां पनडुब्बी बेड़े में लगभग कालातीत हो जाती हैं। आइए प्रोजेक्ट 661 एंकर की अद्भुत विशेषताओं पर भी नजर डालें। यह पनडुब्बी सोवियत नौसेना की एक परमाणु ऊर्जा चालित क्रूज मिसाइल पनडुब्बी थी। यह दुनिया की सबसे तेज पनडुब्बी थी और टाइटेनियम पतवार वाली पहली पनडुब्बी थी। अपनी तेज गति के बावजूद इसे एक दोषपूर्ण डिजाइन माना जाता था। मूल रूप से K18, फिर K162 और अंततः 1978 में K222 नाम दिया गया। इसे इसलिए विकसित किया गया था क्योंकि इको श्रेणी की पनडुब्बियों को मिसाइल दागने के लिए सतह पर आना पड़ता था। 1958 में अधिकृत इसका निर्माण 1933 में शुरू हुआ, लेकिन टाइटेनियम के साथ काम करने में आने वाली चुनौतियों के कारण इसमें देरी हुई। हालांकि इस पनडुब्बी ने अपने कई महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा किया, लेकिन तेज गति पर यह शोर करती थी, जिससे इसका पता आसानी से लगाया जा सकता था। इस खामी के कारण इस डिजाइन का बड़े पैमाने पर उत्पादन न करने का निर्णय लिया गया, लेकिन इसने भविष्य में टाइटेनियम पतवार वाली पनडुब्बियों के लिए रास्ता साफ कर दिया। 1969 में कमीशन की गई। यह पनडुब्बी 10 एंटी शिप क्रूज मिसाइलों और 4 टॉर्पीडो ट्यूबों से लैस थी, जो अमेरिकी विमान वाहक पोतों को नष्ट करने में सक्षम थी। इसने सोवियत रेड बैनर उत्तरी बेड़े में सेवा की, लेकिन पतवार में दरारें और एक रिएक्टर दुर्घटना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1981 में अपनी अंतिम गश्त के बाद
K222 को 1988 में सेवा मुक्त कर दिया गया और 2010 में स्क्रैप कर दिया गया। हालांकि यह पूरी तरह से टाइटेनियम पतवार वाली पहली पनडुब्बी है जिसे 1966 में परिचालन में लाया गया था और 2015 में ही स्क्रैप के लिए काटा गया था। चुंबकीय उपकरणों के लिए अदृश्य इस अति मजबूत विशालकाय पनडुब्बी को बनाने के लिए इंजीनियरों को टाइटेनियम वेल्डिंग की एक पहले असंभव विधि का आविष्कार करना पड़ा और अक्रिय गैस से भरे विशाल कक्ष बनाने पड़े। 2 रिएक्टर, एक मजबूत पतवार और प्रकृति से उधार ली गई पतवार की ज्यामिति ने गोल्डन फिश को सबसे तेज पनडुब्बी बना दिया। प्रशांत महासागर पार करते समय इसने पानी के भीतर 50 मील प्रति घंटे की गति का रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है। अगली पनडुब्बी जिसकी क्षमताओं का हम परीक्षण करेंगे वह ऑस्कर श्रेणी की पनडुब्बी है जिसे प्रोजेक्ट 949 ग्रेनाइट एंड प्रोजेक्ट 949A एंटे के नाम से भी जाना जाता है। ये सोवियत संघ की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल पनडुब्बियों की एक शक्तिशाली श्रृंखला है। 1930 के दशक में निर्मित इनमें से 6 अभी भी रूसी नौसेना में सेवारत हैं। 2 अन्य को 2017 में उनकी सेवा जीवन और युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए अपग्रेड करने की योजना है, लेकिन 2023 में उनकी स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। इन विशाल पनडुब्बियों को 2007 तक सबसे बड़ी क्रूज मिसाइल पनडुब्बियों का खिताब हासिल था, जब कुछ ओहायो श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को क्रूज मिसाइल ले जाने के लिए संशोधित किया गया। आज विस्थापन और लंबाई के मामले में ऑस्कर श्रेणी चौथी सबसे बड़ी पनडुब्बी श्रेणी है, जो केवल सोवियत टाइफून श्रेणी, रूसी बेरेट श्रेणी और अमेरिकी ओहायो श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों से ही आगे है। ऑस्कर क्लास का लंबा और आकर्षक इतिहास उनके प्रभावशाली आकार और शक्ति को दर्शाता है, जो उन्हें नौसैनिक युद्ध में एक दुर्जेय शक्ति बनाता है। यह पनडुब्बी उन अति विशिष्ट पनडुब्बियों के विकास का शिखर और अंत बन गई, जिन्हें सबसे बड़े सतही जहाजों, विमानवाहक पोतों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिनकी सुरक्षा न केवल सहायक जहाजों के समूह द्वारा की जाती थी, बल्कि बड़ी संख्या में पोर्टेबल विमानों द्वारा भी की जाती थी। इंजीनियरों ने ऐसी कठिन समस्या का बखूबी समाधान किया। एंटे के हल्के और टिकाऊ पतवारों के बीच 11 फीट की दूरी 30% तक का महत्वपूर्ण उछाल मार्जिन प्रदान करती है और पानी के भीतर विस्फोटों से सुरक्षा प्रदान करती है। आकस्मिक टारपीडो किसी पनडुब्बी को निष्क्रिय नहीं कर सकता। इस प्रकार की पनडुब्बियां 72P800 ऑनिक्स एंटीशिप सुपरसोनिक मिसाइलें ले जा सकती हैं। इन्हीं के लिए जर्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें डिजाइन की गई थीं, जो उन महासागरों का आतंक बन गई हैं जिनसे अभी तक कोई सुरक्षा नहीं है। प्रोजेक्ट 954 के आर्कटिक हंटर्स सोवियत डिजाइन के आखिरी ऑल टाइटेनियम विध्वंसक विमान वाहक पोत हैं, जिन्हें समय के साथ बहुउद्देशीय परमाणु पनडुब्बियों में बदल दिया गया है और आज आर्कटिक में इनका सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है। इनकी पतवार की ताकत अद्भुत है और इन्हें आर्कटिक के पानी में बर्फ के नीचे से निकलने के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल बाराकुडा और उसके उत्तराधिकारी पानी के नीचे परमाणु आइस ब्रेकर बन गए। इस प्रकार की नाव K276 क्रैब 11 फरवरी 1982 को रूसी जल क्षेत्र में लॉस एंजल्स प्रकार की अमेरिकी पनडुब्बी बैटन रूज से टकरा गई, जिसके बाद अमेरिकी नाव को लिखना पड़ा और क्रैब सेवा में बनी रही। उद्योग की बारीकियों के कारण इस नाव के बारे में बहुत कम जानकारी है। यह परमाणु रिएक्टर टाइफून और टे पर इस्तेमाल किए गए रिएक्टर जैसा ही है। दोनों की विशेषताएं एक जैसी हैं और शोर भी वाटर कैनन वाली अत्याधुनिक नावों जैसा है। और अंत में हम सीवुल्फ पर भी नजर डालेंगे। यह पोत अमेरिकी नौसेना की चौथी पीढ़ी की बहुउद्देशीय परमाणु पनडुब्बियों की एक श्रृंखला है। सीवुल्फ पनडुब्बी क्रांतिकारी अमेरिकी जहाज निर्माण डिजाइन और तकनीक का प्रतीक है। यह पनडुब्बी पृथ्वी पर सबसे जटिल तकनीकी उपकरण है। हजारों मजदूर पिछले 10 सालों से इस जहाज का निर्माण कर रहे हैं और अमेरिकी पनडुब्बी चालक दल में शामिल होने के लिए वर्षों से प्रशिक्षण ले रहे हैं। हालांकि समुद्र के स्वामी का दर्जा पाने के लिए इस पनडुब्बी ने कठोर समुद्री परीक्षणों के एक जटिल दौर में नवीनतम विकास के सबसे कठिन रास्ते को पार किया है। सीवुल्फ पनडुब्बियों का निर्माण सोवियत परियोजना 967 अकुला पनडुब्बियों की नई पीढ़ी का मुकाबला करने के लिए किया गया था और इन्हें उन्नत लॉस एंजल्स श्रेणी की पनडुब्बियों की जगह लेने के लिए बनाया गया था। डिजाइनरों का मुख्य लक्ष्य पनडुब्बी के शोर के स्तर को उल्लेखनीय रूप से कम करना था। उन्होंने एक नई ध्वनिरोधी कोटिंग का उपयोग करके पारंपरिक प्रोपेलर की जगह ट्रैवल गार्ड श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए यूके में विकसित जेट प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग करके और उन्नत सेंसर लगाकर यह उपलब्धि हासिल की। ये पनडुब्बियां अत्याधुनिक संसूचन उपकरणों से सुसज्जित हैं। पानी के भीतर अधिकतम 40 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती हैं, 23 मील प्रति घंटे तक की मौन गति बनाए रख सकती हैं और 1 से 186 फीट की अधिकतम गहराई तक गोता लगा सकती हैं। देखने के लिए शुक्रिया। जब तक आप यहाँ हैं, अपनी स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। वहां मिलते हैं।